Hello everyone, my name is Arun Kumar, PGT Economics from Kendriya Vidyalaya, Sivni. This is the last part of this chapter, that is rural development. In this video, we will discuss about the horticulture and organic farming. So let's start from the horticulture. What is horticulture? It refers to the science or art of cultivating fruits, vegetables, tuber crops, flowers, medicinal and aromatic plants, spices, and plantation crops. These crops play a vital role in providing food and nutrition. Besides addressing employment concerns, horticulture sector contributes nearly one third of the value of agriculture output and 6% of GDP of India. Horticulture has improved economic condition of many farmers and has become a means of improving livelihood for many unprivileged classes too. In India, India has emerged as a world leader in producing a variety of fruits like mangoes, bananas, coconuts, cashew nuts, and a number of spices, and is the second largest producer of fruits and vegetables. Flower harvesting, nursery maintenance, hybrid seed production and tissue culture, propagation of fruits and flowers, and food processing are highly remunerative employment options for women in rural areas. Though, in terms of numbers, our livestock population is quite impressive, but its productivity is quite low. As compared to other countries, it requires improved technology and promotion of good breeds of animals to enhance productivity, improved veterinary care, and credit facility to small and marginal farmers and landless laborers would enhance sustainable livelihood options through livestock production. Production of fisheries has already increased substantially. However, problems related to overfishing and pollution needs to be regulated and controlled. Welfare programs for the fishing community have to be reoriented in a manner which can provide long-term gains and sustenance of livelihoods. Horticulture has emerged as a successful, sustainable livelihood option and needs to be encouraged significantly. Enhancing its role requires investment in infrastructure like electricity, cold storage systems, marketing linkages, small scale processing unit, and technology improvement and dissemination. Now come to the sustainable development and organic farming. So first we will discuss about what is sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हम हिंदी में कहते हैं सतत विकास। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अभी अवेलेबल हैं इनका इस तरीके से एफिशिएंट यूज़ करना है हमें कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वह भी इन रिसोर्सेज का यूज़ कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अभी एक्सेसिव यूज़ करें अपने रिसोर्सेज का और वो सारे रिसोर्सेज जो हैं ख़त्म हो जाएं और आने वाली फ्यूचर जो जनरेशन है उसे कभी कोई रिसोर्स मिल ही ना पाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं हम उनको ग्रेजुअली क्या धीरे धीरे क्या करेंगे उनका यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार में अगर हमारे पास कोई रिसोर्स मिल रहा है तो हम उसको पूरा एक्सॉस्ट कर दें, उसको ख़त्म कर दें, उसका ओवर यूज़ करके। ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो ऐसे ही फार्मिंग में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें हम अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है कि हमें एग्रीकल्चर पे ही हम पूरी तरीके से बेस्ड हो जाएं, इतने फर्टिलाइजर्स इतने केमिकल्स हम यूज़ कर लें कि हमारा जो भी लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है वो फिर किसी यूज़ के लिए न रहे। इसलिए क्या होता है कि इस चीज़ का जो एग्रीकल्चर से डाइवर्सिफिकेशन किया गया है कि जो भी बर्डन पड़ता था एग्रीकल्चर पर ये ना हो, और फिर इसके अल्टरनेटिव्स धीरे धीरे आते गए, और हमने देखा कि अभी एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, इस टाइप से डिफरेंट अदर सेक्टर्स भी निकल के आए हैं उस एग्रीकल्चर सेक्टर से ही। और ये जो एग्रीकल्चर लैंड होता है, ठीक है, इसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए या इससे अभी हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स मिले होते हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ के लिए वो नुकसान करते हैं। तो इस नुकसान को ही कम करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसा कॉन्सेप्ट आया है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले से, जब टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, आज से 50 साल पहले ही लोग पूरी तरीके से जब हम डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे ही, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो जो जिस मेथड से जो मेथड यूज़ करते थे एग्रीकल्चर के लिए, वही ऑर्गेनिक फार्मिंग था एक तरीके से। अब क्या है कि धीरे धीरे फिर टेक्नोलॉजी का विकास होता है, फिर एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स आते हैं मार्केट में, केमिकल्स आते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है ह्यूमन हेल्थ पर, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है, चाहे वो रूरल एरियाज़ में हो या फिर वो अर्बन एरियाज़ में हो। तो फिर से ये महसूस किया जाने लगा कि कहीं ना कहीं अब हमें उस जो पुरानी जो मेथड था एग्रीकल्चर का, उसे फिर से हमें धीरे धीरे लागू करना चाहिए, और तभी जाकर हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। वरना हमें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के चक्कर में हमें अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आइए हम जानते हैं कि फिर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। ठीक, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ producing safe and healthy food without leaving any adverse impact on the environment. In short, organic agriculture is a whole system of farming that restores, maintains, and enhances the ecological balance. हम ये देखते हैं कि हम जो भी मेथड्स यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में एग्रीकल्चर के, वो क्या होते हैं, वो इको फ्रेंडली होते हैं, उससे हमारे एनवायरनमेंट पे कोई नुकसान नहीं होता है, और इसके जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जो भी मतलब जो प्रोड्यूस होता है, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और हम आगे देखते हैं कि इसके अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। तो पहला है इकोनॉमिकल फार्मिंग, ठीक है। इट ऑफर्स अ मीन्स टू सब्सटीट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट्स, HYV seeds, chemical fertilizers, pesticides, etc. with locally produced cheaper organic inputs. सबसे पहले ये है कि ये बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, जैसे ये हमारे फार्मर्स के लिए भी क्या है, बहुत सस्ता पड़ता है उनके लिए, इकोनॉमिकल है। जैसे हमारे फार्मर्स को पेस्टिसाइड्स पर या केमिकल्स पर या हाई यील्ड वैरायटी सीड्स पर परचेज़ करने के लिए उनके पास फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती थी, उन्हें ज़रूरत पड़ती थी पैसे की, और हमारे जो फार्मर्स हैं वो इतने अभी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इतना अफोर्ड कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे फार्मर्स हैं, रूरल एरियाज़ के जो फार्मर्स हैं, इनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट पॉइंट है जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सिर्फ इनकी डिमांड जो है इंडिया में ही नहीं है, ये अब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इसकी रिक्वायरमेंट पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पोर्टेंस को महसूस किया जा रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी काफ़ी डिमांड है। अदर कंट्रीज़ जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी लोग जो हैं लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फूड की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि जब हम अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को
एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें इनकम मिलती है। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड्स हेल्दी फूड, जैसा कि अभी हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ये बिल्कुल क्या होता है, ये इको फ्रेंडली होता है और इसमें केमिकल्स नहीं होते, फर्टिलाइजर्स नहीं होते हैं। तो अगर ये सब जो केमिकल्स अगर यूज़ नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से अगर एग्रीकल्चर हो रही है, मेथड्स यूज़ हो रहे हैं एग्रीकल्चर के, तो ये फूड जो होते हैं ये हेल्दी होते हैं और ये हमें क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ हमारी हेल्थ को भी मेंटेन करते हैं। The next one is source of employment. It requires more labor input than conventional farming. ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसमें लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। जब ज़्यादा लोग का यूज़ होगा तो कहीं ना कहीं उनकी जो है इनकम जो है, जो लोग अभी खाली बैठे हुए थे, अनएम्प्लॉयड पर्सन्स जो थे, वो कहीं ना कहीं अगर इस एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं तो उन्हें भी अम, कुछ ना कुछ अर्न होगा, जिससे उनकी जो डेली लाइफ है वो इजीली चलती रहेगी। सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट, जैसा कि अभी हमने इसके डेफिनेशन में ही देखा था, ठीक है, कि ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत सेफ़ है। ये कैसे सेफ़ है, क्योंकि ये पेस्टिसाइड फ्री होता है और इसमें केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उस पर भी कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं डालता है। वरना क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते करते क्या होता है कि और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने से क्या होता है कि जो सॉयल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस चीज़ को दूर करने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैलेंजेस बिफोर ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमने बेनिफिट्स देख लिए हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ड्रॉबैक क्या हैं या फिर इसमें कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। पहला है कि लेस पॉपुलर, देयर इज़ अ नीड फॉर एन अप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर पॉलिसीज जो प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में अभी उतना नहीं मालूम है। तो इसको थोड़ा सा और इसके बारे में लोगों को बताने की ज़रूरत है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो क्यों ज़रूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग needs to be popularized by creating awareness and willingness on the part of farmers for adoption of new technology. There is a serious need for an appropriate agriculture policy to promote organic farming. Lack of infrastructure and marketing facilities. Organic farming faces problems of inadequate infrastructure and market facilities. हम ये देखते हैं कि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, या जो रूरल एरियाज़ हैं उनका अर्बन एरियाज़ के साथ लिंक नहीं है। तो ऐसे में अगर किसी रूरल एरियाज़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है या वहाँ पर जो वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, रोड्स हैं ये बिल्कुल वेल डेवलप्ड होने चाहिए, मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से डेवलप नहीं है तो कहीं ना कहीं जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो सही से नहीं हो पाएगी। अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग हो भी रही है तो उसको अर्बन एरियाज तक या फिर उसको अदर स्टेट में हम उसको सेल नहीं कर पाएंगे। द नेक्स्ट वन इज लो yield. Organic farming has a lesser yield in the initial years as compared to modern agricultural farming. As a result, small and marginal farmers find difficult to adapt to large scale production. जैसा कि हम देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसमें हम फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का यूज़ तो करते नहीं हैं, ठीक है। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो होती हैं इनका हम यूज़ करते नहीं हैं। तो जो प्रोडक्शन होता है
वो बहुत कम होता है। मान लीजिए कि एक 100 हेक्टेयर का एक लैंड है, और उस लैंड पर अगर हम पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का और HYV सीड्स का यूज़ करके अगर हम फार्मिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। लेकिन उसी पर्टिकुलर लैंड पर अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसके जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है, उतना नहीं मिल पाता है, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है जितना कि मिलना चाहिए था। तो इसलिए भी क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो देखते हैं कि एक तो इसका प्रोडक्शन कम हो रहा है इस मेथड से, और अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं फिर उनकी इनकम जो है कम होगी। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी इनकम कम, प्रोडक्शन कम है तो उनकी इनकम कम होगी। तो इस वजह से भी क्या होता है, वो थोड़ा सा जो फार्मर्स हैं वो अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। Next one is shorter food life. Organic produce has a shorter shelf life as compared to spread produce. हमने ये देखा कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें हम किसी पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते नहीं हैं। तो अगर हम किसी पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जल्दी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से क्या उस पर अटैक करेंगे, उस तो और ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होने की वजह से भी क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं या फिर जो जिनको जो कंज्यूमर्स हैं वो इस चीज़ को उतना जो है प्रेफर नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो है दोनों के सामने दिक्कतें आ रही हैं। नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स. The choice in production of off-season crops is quite limited in organic farming. In spite of all these limitations, organic farming helps in sustainable development of agriculture, and India has a clear advantage in producing organic products for both domestic and international market. Now come to the evaluation of rural development. The rural sector will continue to remain backward until and unless some spectacular changes occur. Some of the changes which need to be taken for development of rural sector are outlined below. The first one is stress on diversification. There is a need to make rural areas more vibrant through diversification into poultry, fisheries, vegetable and fruits. Next one is rural and urban linkage. Efforts should be made to link up the rural production centers with the urban and foreign, that is export market, to realize higher returns on the investment for the products. Next one is better facilities. Proper efforts should be made to develop infrastructure elements like credit and marketing, state agriculture departments, farmer friendly agriculture policies, and constant appraisal and dialogue between farmer groups. The aim is to achieve full potential of the rural sector. And the last one is more emphasis on sustainable development. There is a need to invent or produce alternate sets of eco-friendly technologies that lead to sustainable development in different circumstances. So, thanks to all.